ओके, टॉर्ट्स लॉ, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का केस जो है डॉनहॉग वर्सेस स्टीवेंसन 1932, दिस इज अ लैंडमार्क केस. So what happened in this case? So there was Mrs. Donhog, and she went to a cafe in England, actually Scotland, with a friend. So this is Mrs. Donhog. She along with her friend went to a cafe and she ordered a ginger beer or ginger beer, whatever we say. So this was the bottle she ordered. So it was totally opaque. Opaque means nothing was visible inside the bottle. Nothing was visible inside the bottle. So she can't see whatever was there inside the bottle. So it was of dark glass. Because of dark glass, it was opaque. And metal cap was here at the above. So it was, she poured that beer into a tumbler. She poured that beer into the tumbler. After consuming some of the beer, Donhog discovered the decomposed remains of a snail. There was a snail, a decomposed snail inside the beer. And when she saw that snail, she got very much angry, and alongside her angriness, she was very much upset. There was stomach illness, gastroenteritis, all these things happened to her, and she went to the hospital. Then she filed a civil suit, a tort suit, a tort case against Stevenson. Who was Stevenson? Owner of the, Basically the manufacturer of that ginger beer. He was the manufacturer. Stevenson and Limited, he was the manufacturer of that beer bottle. So she sued that Stevenson for tort of negligence. For which tort? For tort of negligence. And she said that Stevenson owed a duty of care to ensure the product was free from any defect. But there was a defect. And what defect? A snail, a decomposed body of the snail was found in the beer. And she drank that beer. So what happened? So क्या हुआ होगा? कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया होगा इस केस में? Was there any duty of care of Mr. Stevenson? yes, Yes, there was a duty of care. So was there a breach of that duty? yes, Very good. So there was duty of care of Mr. Stevenson. There was breach of duty. किस चीज की ड्यूटी? कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट दिया जाएगा उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, तो इसकी उसने ब्रीच कर दी. इसलिए स्टीवेंसन के ऊपर मिसेस डॉनहॉग ने केस डाल दिया कॉम्पनसेशन के लिए. कॉम्पनसेशन दिलाई गई होगी कि नहीं दिलाई गई होगी? बताओ. दिलाई गई. बिल्कुल दिलाई गई होगी, और स्टीवेंसन को वो हर्जाना या वो कॉम्पनसेशन देना पड़ा मिसेस डॉनहॉग को. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट केस, एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये डिसाइड किया, on manufacturer of products owes duty of care to the consumer to take reasonable care that the product is free from any defect which is likely to cause injury to the health of the customer, and she was the customer of that beer. So उन्होंने पता डिफेंस में क्या कहा कि there was no privity of contract. मिसेस डॉनहॉग ने खुद वो बियर ऑर्डर नहीं की थी. एक्चुअली डॉनहॉग की जो फ्रेंड थी उसने ऑर्डर की थी, लेकिन पहला सिप मिसेस डॉनहॉग ने लिया था. ऑर्डर किसी और ने की थी, लेकिन ड्रिंक किसने की थी? किसी और ने, मिसेस डॉनहॉग ने. बट और वो कह रहे भी जब डॉनहॉग ने ऑर्डर ही नहीं की तो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. डॉनहॉग के साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं. हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी जो फ्रेंड है उसके साथ, वो सू कर सकती है, ये नहीं कर सकती.
ऐसा कोई मतलब नहीं है, देर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस, तो शी कैन ऑल्सो सू बिकॉज वो प्रोडक्ट सब यूनिवर्सल है। वो जो गिंगर बियर है वो कोई मर्जी पी सकता है, कोई मर्जी पी सकता है, ऐसे तो नहीं भी यही पिएगी, मिसेस स्टीवेंसन भी पी सकता है, पी सकती है, कोई मर्जी, स्टीवेंसन खुद पी सकता है, दोनों भी पी सकती है, कोई मर्जी पी सकता है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है और दो जन ही है, कोई तीसरा बंदा उसमें एंटर नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने प्रोडक्ट बना लिया, कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी कंपनी का ड्रिंक है, वो यूनिवर्सली सबके लिए है, और कोई भी अगर किसी को वो नुकसान होता है तो ही और शी कैन फाइल द केस, सो उनको कॉम्पनसेशन दिलाएगी। तो दिस वाज द केस। सो इससे क्या हुआ, हमारे इंडिया में कंज्यूमर अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई, और क्योंकि ज्यादा पुराना केस नहीं था, 1932 का ही केस था, कंज्यूमर अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई, और इसके लिए इस डिसीजन ने इन्फ्लुएंस किया इंडिया के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनने के लिए। तो इंडिया का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नोट कर लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसी डॉनहोग वर्सेस स्टीवेंसन के केस से प्रभावित था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अर्लियर इट वाज 2005, बाद में इसको अमेंडमेंट करके 2019 में काफी अमेंडमेंट की गई है। इट इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और इसमें कहा गया कि कंज्यूमर्स जो होते हैं, ये कंज्यूमर है, ही कैन फाइल अ क्लेम अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर if the product delivered by the manufacturer or the seller to the buyer, that is the consumer, is defective। तो अगर आप एसी लेते हो या कोई कूलर लेते हो या कोई आप वॉशिंग मशीन लेते हो, अब उसमें कोई डिफेक्ट है, और डिफेक्ट जो है कवर होता है वारंटी पीरियड में। दो चीजें होती हैं, वारंटी और गारंटी। क्या फर्क है? वारंटी है अभी, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 साल की वारंटी है, अगर 2 साल में प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसको रिपेयर करके देंगे। क्या करके देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करके देंगे। और गारंटी क्या है? अगर कोई उसी समय में डिफेक्ट आ गया 2 साल में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर नहीं करेंगे, वो उसको बदल के दे देंगे, उसकी जगह पे कोई नया प्रोडक्ट है। तो दिस इज नोन एज गारंटी। तो ये चीजें सारी है उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, और इट वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस डॉनहोग वर्सेस स्टीवेंसन केस। इज इट क्लियर? और आप होटल में जाते हो, टूरिज्म सर्विसेज जो होती है ना, टूरिज्म सर्विसेज में होटल हो गए, मोटल हो गए, ऑल दीज एसी रूम्स आपको मिलते हैं, तो उसमें जो सर्विस आपको दी जाती है। और बाय द वे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ डिफेक्टिव गुड्स पे नहीं लगता, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सर्विसेज भी इंक्लूड आ गई। बैड सर्विसेज, वो सर्विसेज जो आप, जिसके लिए आप पे करते हो, अगर आपको सर्विसेज बैड मिल रही हैं तो भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाके सू कर सकते हो, क्लेम फाइल कर सकते हो। जैसे आपने वो प्रेस करने के लिए प्रेस वाले को अपने कपड़े दिए, उसने खराब कर दिए, तो ही इज नॉट गिविंग यू एनी फूड स्टफ्स, तो गुड्स नहीं दे रहा, वो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें डिफेक्ट आ गया, बैड सर्विस है, उसके लिए आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर जैसे ब्यूटी पार्लर वाला है ना, लड़की जाती है ब्यूटी पार्लर में तो बैड सर्विसेज कर दी, उसकी बेचारी की शादी है, उसने बताया भी है ध्यान से करना मेरी शादी है, उसमें एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिए जाएंगे। शी इज द कंज्यूमर ऑफ द सर्विसेज ऑफ द ब्यूटी पार्लर पर्सन, जो भी वो लेडी है, जो जेंट्स है, वो उसका जो ब्यूटी पार्लर जो उसका जो कर रहा है, जो भी वो कर रहा है, उसमें अगर खराब कर दिया उसका, तो और अगले दिन उसकी शादी है, तो शी कैन गेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस फ्रॉम दैट पर्सन, उसने बैड सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो शी इज ऑल्सो कंज्यूमर। इवन आप पेशेंट हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो दैट इज मेडिकल नेग्लिजेंस, दैट इज नोन एज मेडिकल नेग्लिजेंस। डॉक्टर ने ऑपरेशन गलत कर दिया और उस ऑपरेशन के दौरान उसने बॉडी के, फॉर एग्जाम्पल पेट का ऑपरेशन था, बॉडी में कुछ छोड़ दिया, कोई कैंची छोड़ दी या कोई इक्विपमेंट छोड़ दी, और बाद में एमआरआई में पता लगा 3-4 महीने दर्द रहा, आपको ठीक होना चाहिए था दर्द,
लेकिन वो दर्द रहा। एमआरआई में पता लगा तो पेशेंट के पेट में डॉक्टर की इक्विपमेंट थी। तो कितनी ज़्यादा मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स मिस्टेक थी डॉक्टर की। तो उसके लिए भी जो है मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में आप एग्जाम्पली डैमेजेस उस डॉक्टर से ले सकते। तो यू आर द कंज्यूमर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर, यू आर द कंज्यूमर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर। सिमिलरली एक क्लाइंट और एक एडवोकेट के बीच जो भी है ना, तो वो भी इसमें कवर हो जाता है।